जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। चले आ आज रही स्टार्ट करें। आपने कोई स्पेसिफिक केस है, कोई लिया हुआ है केस जो प्रेजेंट करना है, या मैं हिस्ट्री पूरी लेनी है आपने? है जी मैडम, मैंने केस प्रेजेंट करना है, मैंने पूरा केस प्रिपेयर किया हुआ है। चले, ठीक है, स्टार्ट शुरू। करूँ मैम? जी जी, आप केस प्रेजेंटेशन शुरू करें। Bismillahirrahmanirrahim. My patient Ujala, wife of Izan, 23 years of age, housewife, matriculate, a resident of Kohinoor Mills, known consanguineous marriage in the first marital relationship with Mr. Faizan, who is 26 years of age, work as an employee in Doctors Cafeteria and PIMS Hospital. She was presented through the outpatient department of PIMS Hospital on 9th of July 2026 and admitted via emergency department. She is gravida 3 para 1 plus 1 as with her last menstrual period she is unsure of dates. According to my patient, her ninth month completed and 10 months started, and she knows uh, according to her, she is at 37 plus 2 weeks. And she is admitted and presented with a complaint of admit for elective lower segment cesarean section due to oligohydramnios plus workup and management of low hemoglobin levels. Regarding her history of present illness, this is her spontaneous unplanned pregnancy, which was confirmed by the urine pregnancy test when she was overdue for 3 months, which was done at home. Afterwards, she reconfirmed her pregnancy by ultrasound, which was done by the nearby private clinic, which shows single intrauterine pregnancy with positive fetal cardiac activity. Her blood pressure was checked in the private setup, which was normal according to my patient. No blood and urine test was advised over there. She did antenatal visit at the private setup. She was advised tablet folic acid and some multivitamins, but she took with poor compliance. Her first trimester remained uneventful. There is no significant history of any abnormal rash, fever, PV bleeding, leaking, PV discharge, and no history of excessive nausea and vomiting, and no history of a urinary tract infection. At fifth month of gestational age, she again visited to the nearby private setup for did her second antenatal visit at nearby private clinic. Where her ultrasound was done, according to her, ultrasound shows a reduced amount of water around baby. After that, some IV infusion and oral fluid intake and healthy lifestyle modification was advised to her. And at after that, she herself booked to the PIMS hospital at fifth month of gestational age, where her blood test and urine test was advised, but she were done, and but she did not follow her labs investigation later on. And her blood pressure at the booking visit was normal according to her at booking visit. And she had perception of the fetal movement at fifth month of gestational age, which is normal till today. Her anomaly scan was not done. She took tablet iron and calcium supplement with poor compliance. There is no significant history of any PV bleed and PV discharge during the second trimester, and there is no history of any abnormalities in her last child born. And her oral glucose tolerance test was not done, and pattern of abdominal growth was normal according to the gestational age, and no history according to my patient, and there is no history of any abnormal PV bleeding during the third trimester. Tetanus prophylaxis was not given to her. At 37 week of gestational age, she came for the second antenatal visit in the PIMS hospital with labs. Her obstetrical ultrasound was done, which shows a reduced amount of water around baby. According to my patient, like was 5.4 centimeters. She knows this value herself. And her lab shows a reduced level of hemoglobin. Although her lab shows reduced level of hemoglobin, but my patient was but she was asymptomatic at that moment, and she was not complaining of the shortness of breath, easy fatigue, weakness, but mild. She was complaining of mild, easy fatigability. No history of a parenteral iron transfusion in previous and current pregnancy. She has been transfused with 2 units of packed cell last transfusion, which was done 1 day ago. No abnormal reaction was observed, and after transfusion, she feels improvement in general health. No history. She was not giving any history of urinary tract infection, any PV discharge, and sore throat, and no history of heat and cold intolerance.
Regarding her dietary history, regarding her diet, she gave history of intake of chicken on and off, eggs and eggs and vegetable on and off. But she is not using dietary intake of any meat, milk, and fruit intake. She does not give history of pica in the form of eating rice and ice, and no history of abnormal and excessive vomiting and diarrhea. But she gave positive history of external hemorrhoids, but that was not bleeding actively. No history of blood in the urine and blood in the cough, and no history of antepartum hemorrhage in this pregnancy. No significant history of fever, vigils, no history of perineal itching, and walking on bare feet. Now, during her hospital stay in here in the antenatal ward, her fetal monitoring was done twice daily by the CTG, and fetal kick chart count maintained properly. Her blood pressure was monitored twice daily, and oral iron into BD dose also given to her, and ultrasound for the quantification of LICO was done, and there is a plan of the third packed cell transfusion after 1 day, and she is also conservative measurements are also taken, like aminofluid powder infusion of ringer lactate was given to her, and encourage dietary intake of protein diet. However, regarding mode of delivery and time of delivery was discussed with her, and after optimization her hemoglobin and everything remains within normal range, she was prepared for the elective load segment cesarean section at 37 plus 4 weeks within 2 days. Regarding past obstetrical history, as she is para 1 plus 1, her first child born was 3 years back in 2023. She herself booked in the private clinic, and her pregnancy was supervised, and she visits antenatally in the private setup, but not routinely. She was delivered a term male baby of 2.7 kg. Trial of labor was given to her. Her emergency cesarean was done due to antepartum hemorrhage and due to CPT. Baby was delivered with good Apgars, and afterwards was breastfed and vaccinated properly. There is no history of antenatal and postpartum complication afterwards, but she gave positive history of intrapartum APH, but no blood transfusion was given to her. In 2024, she experienced a sudden painless vaginal bleed at home, and that was landed up into a spontaneous miscarriage, and that was not followed by ENC. Regarding her gynecological history, that is very significant. She had age of a menarche at the age of 12 years. Previously, her cycle was regular with average flow. She used to bleed 5 to 6 pads in. She was used to bleed for 5 to 6 days in 27 days cycle. No previous history. She was there was no significant history of intramenstrual bleed, dysmenorrhea, and dyspareunia previously, but now since 3 years. Her cycle was irregular after her last child born, and her cycle is prolonged. She used to bleed 12 to 15 days after 90 days. With heavy flow, she soaked homemade 4 to 5 pads per day with no passage of clot. That was not associated with passage of clot. She took some medication, and sometimes she needs injection Transamine sometime when she bleeds heavily. This is associated, and this heavy bleed is also associated with easy fatigability, dizziness, and she is unable to do her daily life activities. Her quality of life is also affected. She gave a positive history of injection Depo-Provera 3 years back, only single dose, which was not suited to her. And afterwards, she is not practicing any method of contraception. She has been never been screened for the Pap smear. Regarding past medical and surgical history, only give positive history of previous one scar regarding surgical history, and there is no significant history of chronic liver disease, tuberculosis, altered bowel habits, rectal bleed, and blood transfusion previously, and there is no history of hypertension, diabetes, and ischemic heart disease. Regarding family history, there is no significant family history of anomalous babies, and any blood transfusion and the thalassaemic disorder, and any blood disorder in the family. Regarding drug history, she is not allergic to any drug. She is not on any anticoagulant and NSAIDs. Regarding personal and socioeconomic history, she has normal sleep pattern with normal appetite and normal bowel habits.
There is no significant positive history of any smoking and recreational drug abuse. She lives in a rented house with her husband and one child. Well ventilated house. She's used supply water for the drinking purposes. Her necessities of life are met with difficulty. On examination, a young lady of 23 years lying comfortably on bed, conscious and well cooperative, with vital signs. Blood pressure is 100 by 60, pulse is 95 beats per minute, temperature is afebrile, respiratory rate is 16 breaths per minute. Regarding her basal BMI, her weight in kg is 51 kg and height was 4 feet and 8 inches. That makes her BMI of 23 kg per meter square. On general physical examination, there are positive signs of pallor appreciated in hands, and mild conjunctival pallor was also appreciated. And there is no signs of the jaundice, cyanosis, chylonychia, leukonychia, and pedal edema was not appreciated, and thyroid was normal and was normal. And there are no signs of stomatitis and glossitis was noted over there, and JVP is also was not raised. Regarding breast examination, bilateral breast were equal symmetry, no nipple discharge, no near retraction was noted, and there was no lump was palpable in all four quadrants. Regarding the cardiovascular examination, cardiac sounds normal with no added sound. Respiratory is regarding respiratory system, bilateral chest was equal symmetry without deformity. Normal vesicular breathing were appreciated. On per abdominal examination, abdomen was moving symmetrical with respiration, stria gravidarum and linea alba was seen. Centrally placed umbilicus and previous one scar was seen also seen. Our symphysiofundal height is 36 centimeter. Single alive fetus with longitudinal encephalic presentation with estimated fetal weight of 2.0 to 2.4 kg. Clinically, life seems to be reduced, and fetal heart sounds were positive. That is 130 to 140 beats per minute. That's it, ma'am. अच्छा, इसके अंदर ना अ- अच्छा था, मैंने टाइम अभी नहीं चलाया था आपका, क्योंकि मैं एक दफा आपकी प्रेजेंटेशन सुनना चाह रही थी। टाइम मैनेजमेंट में बाद में देखूंगी। जी मैम। अच्छा, पहली चीज इसमें जो है, बायोडेटा के अंदर आप ना LMP जी जी। ETD लास्ट चाइल्ड बॉर्न, जी जी। ठीक है, ये डालिए। ठीक है, ये जी बायोडाटा के मैडम। अंदर डाल दें। एड्रेस भी मेंशन करें। मैडम कोहिनूर मिल्स बताया ना कि रेजिडेंट ऑफ कोहिनूर मिल्स बताया। अच्छा, कोहिनूर मिल से वो थी। अच्छा, दूसरा चीज, जब आपने प्रेजेंटेशन गेस्टेशन की तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बता दी, मेरे ख्याल में जो आपने आपने रखा ऐसे कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की दो तीन बातें बताई, उसके बाद आपने करंट प्रेगनेंसी पे चली गई, और फिर आप दोबारा से प्रेजेंटेशन पे आई हैं। वो जो दोबारा से आप प्रेजेंटेशन पे आई हैं, ठीक है, हमने लॉन्ग केस को कहानी की तरह चलाना होता है, बट मेरा ये ख्याल है कि जो आपने करंट प्रेगनेंसी की बातें की है ना बाद में, जी जी मैडम। उनको पहले ही प्रेजेंटेशन के साथ कर दें। यानी वो अनीमिया था, ओलिगो था, ओलिगो की सारी कॉजेज को बता दें, और अनीमिया की सारी कॉजेज को बता दें। ठीक है, फिर आप करंट पर आ जाएं। लाइक मैडम ये वाले पॉइंट आपका समझ नहीं आया कि जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात बोली कि हर प्रेजेंटिंग शी वाज एडमिटेड फॉर इलेक्टिव हाँ, लोअर सेगमेंट सर्जरी ड्यू टू ओलिगोहाइड्रोमियास प्लस एंड वर्कअप एंड मैनेजमेंट ऑफ लो लेवल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। अनीमिया, इसके साथ हाँ। ये पेशेंट एडमिट हो गया और फिर उसके हाँ, बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस स्टार्ट नहीं कर देनी कि जैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलनी है और उसके बाद HOPI स्टार्ट कर लें। नहीं, HOPI स्टार्ट करना है ना, HOPI के अंदर आपने ना करंट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू की है। जी जी बिल्कुल इसी तरह दिस इज ठीक हर है, फिर स्पॉन्टेनियस आप अनप्लान्ड बाद प्रेगनेंसी। में आके, तो अब जो उसकी सिचुएशन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की डिटेल्स है ना अनीमिया की, वो आपने बताई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बाद ठीक में है, बताई हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि जो आपने वो एंड पे बताई है ना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की डिटेल, उसको हिस्ट्री ऑफ जी जी। HOPI में पहले सबसे पहले ऊपर रखें, ओके। कि ठीक हो एग्जामिनर गया ये मैम। सुनना चाहता है कि अभी प्रेजेंट उसकी क्या सिचुएशन है।
ओके। आपने डिटेल सुनाना शुरू कर दी, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में ये चल रहा था कि अनीमिया का अभी तक इसने क्यों नहीं बोला। समझ आई? जो दो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना, हिस्ट्री जी ऑफ बेटा। HOPI है ना, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। जी बेटा। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को पहले एड्रेस करें। आप समझे कि करंट प्रेगनेंसी एंटीनेटल जो हिस्ट्री है वो बाद में आएगी। HOPI का मतलब ही हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है। उसमें पहले आप एनीमिया और ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की जो हिस्ट्री आपने बाद में बताई है, वो आप पहले बताइए। थोड़ी सी तरतीब चेंज करें, क्योंकि आपकी पूरी कहानी सुनते जा रहे थे, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि एनीमिया की क्या कॉज है, एनीमिया की क्या कॉज है, जो आपने बाद में बताई। ठीक है? जी मैडम तो ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को इस तरह से चेंज कीजिए कि वो जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना, अनीमिया और इलीगो की बातें वो पहले करनी है। फिर आप जब ये वो कर लें, फिर आपके दिस प्रेगनेंसी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ करंट प्रेगनेंसी, वो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। और जो आपने सुनाया पहले, वो हिस्ट्री ऑफ, वो है करंट प्रेगनेंसी। ठीक है? समझ आया जी मैडम। पॉइंट अब आपको? जी। जी जी मैडम समझ आ गए हैं हाँ कि जैसे ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का जिक्र करना है और उसी के साथ फिर वही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को पहले एड्रेस करना है कि वो जो रिस्क मतलब कि जिसके साथ पेशेंट एडमिट हुआ है, हाँ। मतलब ओलिगोरेनिया को पहले एक्सप्लेन करना है कि उनकी से एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर सारे रूल आउट करने हैं। एंड देन फिर करंट प्रेगनेंसी का करंट स्टेटस बताना है कि करंटली इसकी जो करंट प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी वो का ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी वाइज के आपने जो हिस्ट्री बतानी है ट्राइमेस्टर वाइज। वो आपने बताते जाना है। लेकिन मैडम एक चीज मैं पूछना चाहूंगी यहाँ आपसे कि जो डॉक्टर नाहिद हमसे लॉन्ग केस लेती हैं तो उनका सीक्वेंस जो पैटर्न है ना, लाइक वो इसी तरीके से हमसे ले रही होती हैं कि उन्होंने हमेशा ही दिस इज हर स्पॉन्टेनियस अनप्लान प्रेगनेंसी से ही हमने स्टार्ट लेना होता है हाँ हाँ, वो कि आप ले प्रेजेंटेशन। लेना। वो तो आप ले लें ठीक है। कि ठीक दिस है। इज अ स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड, वो तो जुमला आप अनप्लान बोलिए। ठीक है। वो एक जुमला बोल के, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की बातें हैं वो जरा पहले कर दो। फिर करंट ठीक हो प्रेगनेंट गया। ड्यूरिंग दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इन दिस प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट ओके। ट्राइमेस्टर, शी हैड नो कंप्लेंट ऑफ PV bleeding, PV leaking, discharge. She confirmed her pregnancy by her dating scan was done. She started folic acid in first trimester. Then she go for anomaly scan as well. She booked her in this at this point. ठीक है? मेरा सिर्फ ठीक हो वो गया जो मैम आपने fine। आपने करंट, वो तो आप बिल्कुल। जुमला स्टार्ट ऐसे ही होगा हिस्ट्री ऑफ सही। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को, दिस प्रेगनेंसी वाज प्लान्ड और अनप्लान्ड, ठीक हो गया मैडम। spontaneously conceived and gestational amenorrhea of, at present as she is at gestational amenorrhea of 37 weeks by her last menstrual periods. ठीक है? ठीक हो। she और अगर presented पेशेंट with अच्छा। she presented with, अगर। अच्छा आपने कहा शी वॉज एसिम्टोमेटिक। अभी मैं डिटेल्स में अलग से जाती, मैं सिर्फ अभी आपकी थोड़ी तरतीब की, थोड़ा सा जी जी। तरतीब को चेंज करना चाहती। स्टार्ट जुमला आप ऐसे ही करेंगी, लेकिन ठीक बताना हो जब गया। आप शुरू करेंगी तो जो आखिर में बताया वो पहले बताएं, और फिर आप ठीक हो करंट गया मैडम। प्रेगनेंसी की सारी बातें बताएं, ट्राइमेस्टर वाइज बताते जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी, एक तो ये तरतीब को थोड़ा सा चेंज कर लें। अच्छा, करंट प्रेगनेंसी के, अभी आपने जो करंट प्रेगनेंसी के बारे में बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बता दिया, OGTT का आपने बता दिया कि उसका कोई OGTT नहीं हुआ। अनॉमली स्कैन आपने बताया कि हुआ, लेकिन उसको बताएं कि नहीं उसके हुआ। ऊपर कुछ है। नहीं हुआ था, नॉर्मली स्कैन उसको एडवाइस किया हाँ, गया था, उसने ये भी नहीं करवाया। उसने ये भी नहीं करवाया, और लैब्स को लैब्स हुई लेकिन फॉलो और नहीं हुई। उसको भी फॉलो नहीं किया। नहीं फॉलो हाँ, किया उसने। नहीं तो जब वो 20 वीक्स पे आई थी तो उनका पिम्स वालों ने उसका स्कैन नहीं किया।
तो उस वक्त मैडम बुकिंग पे ना डेट वगैरह पेशेंट को डाल के दी जाती है ना। जब फर्स्ट इनिशियल विजिट पे पेशेंट आता है तो उसको हम बुकिंग की डेट के लिए भेज देते हैं। तो फिर जब उसको डेट मिली तो उसने वो भी नहीं फॉलो की, उसने कोई स्कैन भी नहीं करवाया। इवन उसने जो इन्वेस्टिगेशन सबमिट करवाई तो शी सेज टू मी के मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि लैब्स नॉर्मल आई हैं लेकिन उसने रिसीव नहीं की। सिर्फ वर्बली उसने ये बात मुझे कही। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला जब आपने रिसीव ही नहीं की। तो अभी जब उसकी लैब्स आई है ना, जो अभी फ्रेश जो उसने रिसेंट करवाई थी, उसमें प्रीवियस हमारे हॉस्पिटल का भी रिकॉर्ड आ जाता है ना कि जो लास्ट सबमिट हुई है उस वक्त भी उसकी एचपी वाज 7.2, जो मार्च में उसकी आ रही थी। और अभी जुलाई में उसकी 6.2 पे आ आ गई गया है, है। ड्रॉप हो गई। लाइक उसकी जब फिफ्थ मंथ अजान से को, ही उसका ना ये एचबी कम एक था। मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। वो हम इन्वेस्टिगेशंस को फिर बाद में डिस्कस करते हैं। जी जी। अच्छा, जी आपने ना मैडम। एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कहा कि शी वाज नॉट सिम्टोमेटिक बट शी हैड इजी फिटिगिबिलिटी, ऐसे ही बोला है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही बोला है कि हाँ, ऑल्दो शी आपने ना वाज ऐसे नहीं एसिम्टोमेटिक। बोलना। जब उसको जी माइल्ड मैडम। इजी फिटिगिबिलिटी है ना, तो फिर उसको जी जी। एसिम्टोमेटिक डिक्लेयर ना करें। ओके मैडम। शी इज सिम्टोमेटिक, चाहे वो माइल्ड इजी फिटिगिबिलिटी है पर उसको सिम्टम्स हैं। क्योंकि एसिम्टोमेटिक की कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है, फिर उसको आप माइल्ड भी डाल दें तो देयर इज अ कंफ्यूजन। ठीक है, फाइन सो मैडम। डोंट गेट कंफ्यूज। शी इज ओके मैडम। सिम्टोमेटिक, चाहे उसको माइल्ड इजी फिटिगिबिलिटी है, उसको आप एसिम्टोमेटिक डिक्लेयर नहीं कर सकती। और कोई भी पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया के साथ होगा तो ये स्टूपिडिटी होगी उसको एसिम्टोमेटिक कहना। इट इज नॉट पॉसिबल। इतना बॉडी के अंदर रिजर्व नहीं होता कि वो 5 मंथ्स के एमेनोरिया से लेकर 9 मंथ्स के एमेनोरिया तक एनीमिक है और वो सिम्टम्स शो ना करे। ठीक है, ठीक हो गया इट इज मैडम। वेरी रेयर। हाँ, वो इग्नोर कर रही होगी सिम्टम्स को। ठीक है, ठीक हो गया मैडम। इट इज नॉट पॉसिबल। आप उसको अगर एसिम्टोमेटिक बोलेंगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा इस बात का। कि मैडम मैंने ना काफी ज्यादा उससे ना ये चीज डिक आउट करने की कोशिश की थी कि आपको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो या कोई ठीक लाइक है ना, इस तरीके इजी से पैल्पिटेशन फिटिगिबिलिटी हो। तो है ना। हाँ ये उसने बताया था कि हाँ मतलब बस मैं ठीक है, थोड़ा इस सा हद तक आ काफी है। जाती बाकी आपने सिम्टम्स हूँ। पूछ लिए, तो उसके अंदर एक ही सिम्टम आया इजी फिटिगिबिलिटी का। जी मैडम ठीक हो ठीक है, गया। बाकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो फिर उसका मतलब ये होता है कि पेशेंट कार्डिक कॉम्प्रोमाइज में जा रही है। ठीक है, ठीक तो हो गया। आपकी पेशेंट अभी कार्डिक कॉम्प्रोमाइज में नहीं गई। ऊपर सारा अज, अ, अच्छा, उसके बाद करंट प्रेगनेंसी में आपने सारा कुछ तकरीबन बता दिया, कोई चीज उसमें मिस ऑलमोस्ट नहीं थी। लिगो की भी सारी बातें बता दी, नॉर्मलीज को भी आपने बता दिया। पर्पसली एनीमिया की वजह से ही इसका ओलिगो भी हो रहा था। ठीक है, तो वन ऑफ द कॉज ऑफ जी ओलिगो इज एनीमिया एज वेल। तो ठीक है, उसमें कोई चीज मिस नहीं थी। वर्म्स इन्फेस्टेशंस, वो आपने पानी का जिक्र कर दिया कि उसके घर में पानी वगैरह ठीक था, तो वो ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं आपकी ट्राइमेस्टर वाइज। वो तो आपने एक जुमले, क्योंकि इस पेशेंट ने फॉलो ही नहीं किया तो इसलिए ग्रोथ स्कैन को मेंशन, जुमला बोल दे तो ज्यादा अच्छा है कि जी देयर इज मैडम। नो एनॉमली इन ग्रोथ स्कैन और डन। ओजीटीटी का जिक्र आपने कर दिया तो ग्रोथ स्कैन का भी जिक्र कर दें। जब आप एनॉमली स्कैन नहीं हुआ तो साथ ही बोल दें कि ग्रोथ स्कैन्स भी नहीं हुए। ठीक है, ओके मैडम। और हाँ, इसमें था यही था बस इसमें, क्योंकि उसमें कुछ और था नहीं तो इसलिए मेंशन करने वाला यही था। अब आ जाते हैं ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के अंदर। वो भी आपकी ठीक थी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसको नहीं हुए थे कोई भी। प्रीवियस प्रेगनेंसी में नहीं हुए थे मैडम। अब वो उसने मेंशन बस बताया भी। कर दें। जी मैडम मैंने ये बताई है ये बात कि जहाँ मैंने हाँ, इसकी उसकी उसी के साथ बता दिया कि वो नो अलग, ब्लड जब वो ना ट्रांसफ्यूजन। अलग से भी आप बता दें, यहाँ तो बताई है ना। जी
ड्रग जी जी। एलर्जीज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अलग से भी मेंशन कर दें कि अगर उनके नंबर हो तो वो उनको एक दफा रजिस्टर्ड हो जाए कि हाँ इसने अलग से भी बताए हैं। वो डिपेंड करता है क्योंकि अभी मैंने आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं देखी, इसलिए मैं अभी टाइम का जिक्र नहीं कर रही। क्योंकि जब मैं टाइम मैनेजमेंट देखूंगी कि आपने 5 से 6 मिनट है आपके पास केस प्रेजेंटेशन के, तो वो अगर उसमें नहीं आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आपका 30 मिनट्स है ना ये। जी जी मैडम। हाँ, तो 30 मिनट्स के अंदर इसमें आपके 15 मिनट आपके इन्वेस्टिगेशंस के हैं, 15 मिनट आपके मैनेजमेंट के हैं। तो इन्वेस्टिगेशन वाले टाइम में ही आपकी केस प्रेजेंटेशन है। तो मेरा ख्याल है 5 मिनट्स आपको दिए जाएंगे केस प्रेजेंटेशन के। तो स्टिल हमने प्रैक्टिस जरा कम टाइम की करनी है ताकि जितना टाइम सेव हो सके, लेकिन मैंने आज अभी टाइम नहीं देखा आपका। लेकिन मैडम अच्छा, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। नहीं हुआ, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैंने ना हमने ये टाइमर के सारे साथ काम चलना है ना, फिर टाइमर के साथ नहीं चलेंगे तो किया फिर आपकी मैडम, क्योंकि चीजें। मेरे तकरीबन 10 मिनट्स लग रहे हैं, 10 मिनट्स और 40 सेकेंड इस तरह करके थे। हाँ, इसको मैंने दो इसको दफा रिड्यूस रिकॉर्डिंग करके करके देखी सिक्स अपने। 6 7 मिनट्स पे लेकर आएंगे। ठीक है, वो मैं आपको ठीक बताऊंगी कि कौन है। सी चीजें बीच में थोड़ी छोड़नी है, कुछ चीजें आप ना बार बार रिपीट कर रही थी। बिल्कुल, वो मुझे समझ आ रही थी। हाँ, कुछ चीजें आपकी ना जुमले बार बार रिपीट हो रहे थे, तो उनको हम कट डाउन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी अच्छा, मैडम। उसके बाद आपने जो है ना उस पे चली करंट प्रेगनेंसी, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग का भी बताना है, कॉन्ट्रासेप्शन का भी यहीं पे बता दें या गायनेकोलॉजिकल में बता दें। अच्छा, जो आपने बताया ना कि इंजेक्टेबल लिए तो वो उसने दोबारा नहीं लिए। जी अनडिजायरेबल, जी। आपने क्या जुमला बोला था? अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स ऐसे ही। नहीं, जो डज नॉट सूट हर, इट्स डज नॉट सूट हाँ, हर। नॉट नहीं, टू आप हर। ऐसे नहीं यस। बोलेंगी, आप उसके कहेंगे शी क्विट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन ड्यू टू अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अनडिजायरेबल। डज नॉट सूट जी हर मैडम। ये नहीं कर जुमला बोली है। जी मैडम, ठीक हो गया, थैंक यू मैम। और अगर कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट उसने साइड इफेक्ट पीवी ब्लीडिंग कुछ बताया तो वो भी बोल दीजिए, यही ठीक है। बताया था, यही ब्लीडिंग बोला था, उसने कहा था कि हैवी हाँ, ब्लीड स्टार्ट हो गया था। हाँ, ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग, ड्यू टू अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ अन हैवी ब्लीडिंग, हैवी विजाइनल ब्लीडिंग, शी stop injectable contraception and no other contraception method is adopted, ठीक है। जी मैम। तो ये कर दें आप इसको। और पैप्समियर का भी जिक्र करते हैं यहीं पे। किया मैडम, जिक्र किया है कि शी वाज नॉट, शी हैज नॉट बीन स्क्रीन फॉर द पैप स्मेयर टिल नाउ। हाँ, हर शी नेवर, हर पैप्समियर वाज नेवर डन, ठीक है। ओके। इस तरह से कर ले, वो भी ठीक था आपका। अच्छा, फिर आपकी आगे मेडिकल भी आपने सारी बातें बता दी, सर्जिकल में आपने बता दिया, ठीक है। फिर आपने सोशो इकोनॉमिक को भी थोड़ा डिटेल में बताया, ठीक है। और पर्सनल में स्मोकिंग जी, स्मोकिंग भी और और रिक्रिएशनल ड्रग एब्यूज का बताया मैडम। ड्रग एडिक्शंस के जी। बारे में बता दें, ठीक है। जी जी, और अच्छा, स्लीप अब पैटर्न सारा प्रेजेंटिंग, बताया। अब आपके एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं। जी जी। एग्जामिनेशन में आपने थोड़ा सा डिटेल में जाना है, ठीक है। काइलोनिकिया, ये सारी बातें जो है ना आपको बतानी पड़ेंगी, हैंड्स की बातें, पामर की, पेलर की, काइलोनिकिया की, स्क्लेरा की बातें, ठीक है, अलग से ये बतानी वाला है। पॉइंट, जी मैंने ये वाला पॉइंट इस तरह बोला था ना कि इससे पहले पॉजिटिव फाइंडिंग बताई है कि जैसे पॉजिटिव साइंस होता नहीं, नहीं, पैलर। आप तरतीब से एग्जामिनेशन बोलती जाएं और साथ साथ उसको जी जी। पॉजिटिव करती जाएं, ठीक है। ओके। समझ आई बात की, क्योंकि वो फिर एग्जामिनर आपका ना तरतीब से सुन रहा होता है। पॉजिटिव पहले सुन के फिर आप नेगेटिव बताएंगी, आपने जो लॉन्ग, वो शॉर्ट केस के अंदर हम कहते हैं कि पॉजिटिव बताते जाएं सिर्फ, क्योंकि वहां पे समराइज होती है, ये समरी की बातें हैं कि आप ठीक पहले होगा। पॉजिटिव बता दें।
प्रेजेंटेशन के अंदर आपने तरतीब से बताने जाता है, देयर वाज नो पेलर ऑन हैंड्स, काइलोनिकिया, फिर ब्लड, उसके जॉन्डिस, बाद जी जॉन्डस, मैडम, स्क्लेरा इज नॉर्मल, एनीमिया। ओरल हाइजीन इज गुड, थायराइड इज नॉट एनलार्ज, लिम्फ नोड इज नॉट पैल्पेबल। ठीक है, वो तरतीब के साथ आपने अपना जनरल फिजिकल बताते जाना है, ठीक है, वाइटल्स भी बताते जाना है, और वो तरतीब के साथ। फिर आप बोलिए कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज नॉर्मल इन इंस्पेक्शन पैल्पेशन, ठीक है, और इसके साथ एक्जिला भी शामिल करें आप, ठीक है, ब्रेस्ट एंड एक्जिला आर इज नॉर्मल ऑन इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन, and on cardio respiratory is examine normal breathing pattern, and with on auscultation there is normal vesicular breathing in all quadrants, ठीक है, जुमला ऐसे करें। ओके। And then cardiovascular examination, apex beat is normal at the mid clavicular line, normal apex beat, and on auscultation normal heart sounds, first and second are no added sound, no murmur is audible, ठीक है। फिर आप सिम्फिजियो फंडल, आप उस पे आइए पर एब्डोमेन पे, और आपने स्कार का नाम बोलना है, देयर इज अ फेनेंस्टीन स्कार इज सीन इन द लोअर एब्डोमेन। आपने ओके बोला मैडम, इसमें। सिजेरियन स्कार इज सीन। सो आप ओके। सिजेरियन स्कार्स की डिफरेंट टाइप्स है, मिड लाइन भी कभी खुल जाता है, कभी जॉल, वो जॉल कोइन बेल्ट भी खुलता है, फेनेंस्टील भी खुलता है, तो आपने ये जिक्र करना है कौन सा स्कार है, ठीक है। ओके मैडम, फेनेंस्टीन स्कार मार्क मैंने लिखा हाँ, उसी तरह ही है, लेकिन बोला गलत है। हाँ सिजेरियन स्कार आपने बोला है उसको, ठीक है। बोला है बिल्कुल, और फेनेंस्टीन स्कार मार्क ठीक, वाज हाँ, प्रेजेंट। फिर आपने जो अपने वो पैडलेक और दूसरे मेन्यूवर्स करने हैं, उस तरतीब से बोलना है आपने, ठीक है। हर सिम्फिजियो ओके मैडम। फंडल हाइट इज 36 centimeters with longitudinal lie and cephalic presentation, and presenting part is 5 by 5 palpable. Fetal heart sounds is audible and normal, that is 131 to 141 beats per minute by fetoscope, ठीक है। आपने वहां पे जी मैडम। फीटोस्कोप यूज करना है और उसी से मेजर करना है, ठीक है। एस्टिमेटेड फीटल वेट इज 2 to 2.4, 2.2 वेट है, 2.4 है, जो भी आपने बताया, और क्लिनिकली लाइकर वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। जी मैडम। क्योंकि इंस्पेक्शन और फिर पैल्पेशन आएगी ना, तो इंस्पेक्शन के अंदर वो आपने सही बताया, सेंट्रल इन्वर्टेड अम्बिलिकस, स्ट्राया ग्रेविडेरम इज सीन, ठीक है, नो एबनॉर्मल जी मैडम। प्रोट्रूबरेंस इज सीन, ठीक है। सिंपल आपका वो प्रोट्रूबर, बाकी आपका गुड, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। माइन्यूट सी चेंजेस हैं, वो इतनी बड़ी चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस इस तरह करने से आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जी मैडम। जी मैडम। चले, अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। व्हाट इन्वेस्टिगेशंस आर देयर, और आप फाइंडिंग्स भी खुद ही बताती जाइए, फिर मैं पूछूंगी ओके कोई मैडम। मिसिंग हुई तो हम देख लेंगे। जी मैडम। Madam, I would like to do her the baseline investigation and including complete blood count ब्लड that ग्रुप was से done शुरू on 9th. करें, ऑलवेज हैव अ Okay, madam. हैबिट ऑफ आस्किंग ब्लड ग्रुप फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। Madam, her blood group was A positive. हम्म, बोलती जाइए ना साथ साथ, जो आप Okay, okay. इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहती हैं वो, और उसकी फाइंडिंग खुद ही बोलती जाइए। जी madam. Her blood group is A positive. Regarding her complete blood count, which was done on 9th of July, her hemoglobin is 6.9 gram per deciliter. Total leukocyte count is 8.68 per millimeter cubic. Platelet count is 4 lakh 43.
And regarding her liver function test, ALT is 29.8, which was normal. Serum uric acid was 5.1, which was normal. And regarding blood cell indices, mean corpus MCP is 60.5, that was decreased. MCH is 16.5, which was also decreased, and MCHC is 27.4, which is also decreased. So complete blood count picture shows iron deficiency anemia, and the serum ferritin is at 12.7 nanogram per ml, and protein to creatinine ratio was done, which was zero point 0.1 milligram per deciliter, which was also normal. And I would like to do her Doppler ultrasound and Doppler ultrasound, and also want to do her CRP and retics count, peripheral smear, and सीआरपी क्यों which was करना है आपने? मैडम जो ओलिगो की कॉज थी उसको मैं देखना चाह रही थी कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द ओलिगो, मतलब आइदर पेशेंट उसकी इन्फेक्शियस So प्रोफाइल्स मुझे पता चल what जाए कि CRP will show if it is raised or इफ if it is not, but which type of disease you are suspecting for CRP? मैडम इफ CRP is raised, this shows infection, मतलब infection is going on, and most probably कोरियोमिनाइटिस पी प्रॉम की तरफ सोचेंगे मैडम के पेशेंट हो सकता है कि लाइक ड्रेन कर रहा था, एक उसके मिनट साथ होल्ड जो है कि कीजिएगा, एक saliva। मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। जी ओके, आगे चलिए। जी मैम। Madam, regarding specific investigation, they are classified into fetal investigation and maternal investigation. Regarding fetal investigation, I would like to do her dating scan. Anomaly scan was also not done. Fresh obstetrical ultrasound, which shows bimetry, including biparietal diameter, femur length, abdominal circumference, head circumference, liker volume, placental localization, estimated fetal weight, and fetal cardiac activity. Regarding maternal investigation, I would like to see the details of RBC indices, peripheral. I would like to do peripheral smear, retics count, protein to creatinine ratio, C reactive protein, CRP, PIH profile, and PIH profile, and hepatitis B What surface included antigen. in PIH profile? Madam, Why you in want to do PIH, PIH in your patient? Your patient is not case of pregnancy induced hypertension. yes, ma'am. My Then why as you want to perform PIH? I would like to do PI profile because I would like to rule out the cause of oligo in this case. To check the cause whether This is might be not a there is very a well justification. आप अपने पेशेंट में जस्टिफिकेशन ये दे सकती हैं as my patient is not on routine antenatal follow up, so there might be a missing element of blood pressure. okay. देखो वो नहीं ना कर रही ना। अच्छा, पीआईएच बिल्कुल प्रोफाइल में क्या क्या लेंगी आप? मैडम, इन PIH profile, serum ALT level,
alanine transaminase, and serum uric acid, and alkaline phosphatase, serum alkaline phosphatase. Hmm. Which levels of ALT and AST will show that it is a deranged level in pregnancy? Madam, when these level rise more than twice of its normal range, then Hmm. it will be labeled as abnormal. Okay. And what are? जी। अच्छा, चलें अब बताइए आगे। पीआईएच प्रोफाइल आप करवाना चाह रही हैं, आगे चलें। जी जी मैडम। और मैम यूरिन हेपेटाइटिस कंप्लीट बी। भी इसमें होगा, पीआईएच प्रोफाइल में। सॉरी मैडम, क्वेश्चन रिपीट कर पीआईएच देंगे उसका प्रोफाइल को मतलब। मैंने कहा था कि पीआईएच प्रोफाइल में बताइए क्या क्या होगा। तो मैडम आपने इसमें। बताया एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन एस्पार्टेट, एएसटीज, जी मैडम। ट्रांसएमिनेज आपने बताया, यूरिक एसिड बताया, और अ, इंग्रेडिएंट उसके पूरे करें ना पीआईएच के अंदर क्या क्या। और पीआईएच प्रोफाइल में आप देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, यस यूरिन मैडम से कंप्लीट और प्रोटीन्स देखते हैं, रीनल फंक्शंस देखते हैं जिसमें क्रेटिनिन और यूरिया भी होता है। ठीक है। देन यू गो फॉर द आईएनआर। ये सारा पीआईएच प्रोफाइल है। बेशक ओके। सीबीसी में से प्लेटलेट्स देखने हैं पीआई, लेकिन जब आपने पीआईएच प्रोफाइल पूछा जाएगा तो फिर ये सब बातें बोलेंगी आप, ओके मैडम। जिसमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं, जिसमें एलएफटीज आ जाते हैं, आरएफटीज आ जाते हैं, फिर आगे से उनकी डिटेल आ जाती है, यूरिन कंप्लीट है। ठीक है। सो पीआईएच ओके प्रोफाइल के अंदर आपने ये सब बातें बोलनी है। ठीक है, प्लेटलेट से शुरू होना मैडम। है। ओके मैडम। जी। ओके। And madam, and also I would like to do her hepatitis B surface antigen and anti-HCV antibodies by ELISA and kit method, and midstream urine for the microscopy and या एलाइजा biochemistry. लीजिए, या एलाइजा बोलिए, या किट मेथड बोले, ये दो सेपरेट चीजें हैं। सो Okay, बाय दोनों को एलाइजा करना। बोलिए। Okay, by ELISA method. Fine, ma'am. And midstream urine for microscopy and biochemistry and blood sugar fasting, uh, if report is available. अब हमारे में ना एचआईवी भी शामिल हो गया है, Okay, madam. वो भी आपने करवाना है। Okay, सिरोवायरल madam. सिरोलॉजी में सिर्फ बी और सी नहीं है, एचआईवी भी अब शामिल है। Okay, madam. स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, फॉर एचआईवी। HIV. जी। जी मैम, बस तो आज यही आपने अपना इन्वेस्टिगेशन। देखना है कि एचआईवी 1 2 हम स्क्रीनिंग मेथड कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, वो भी लाइजा टाइप जी ही मैम। होता है। ठीक है, किट मेथड ही है वो भी। ठीक है, चलिए जी मैडम। आगे। मैडम बस यही इन्वेस्टिगेशन है जो बेसलाइन स्कैन, और स्पेसिफिक। स्कैन्स की डिटेल बोल दी, नॉर्मली ग्रोथ। एनॉमली स्कैन मैंने बोले मैडम ये सारे। हाँ, वो एनॉमली बातें स्कैन बोलनी है एंड ना, फिर उसके बाद डेटिंग। ग्रोथ जी स्कैन भी बोले और रीसेंट भी बोले यहीं पे। स्कैन। ओके, ठीक है। फ्रेश ऑब्स्टेट्रिकल हाँ, अल्ट्रासाउंड। आप जी जी। उसमें बोलिए जी स्कैन, जब आपने फीटल इन्वेस्टिगेशंस में तो स्कैन ही है। ठीक है। जी। जी तो फीटल जी। जी इन्वेस्टिगेशंस के जो स्कैन्स हैं वो आपने सबसे पहले बोलना है, आई वांट टू सी द डेटिंग स्कैन फॉर नंबर ऑफ fetuses and cardiac activity, and if available, nuchal translucency. Then I want to see the anomaly scan, for which I will see the fetal biometry. वो सारी डिटेल बता दें लाए, और फिर ग्रोथ स्कैन, और आगे आप बता दें कि जी वो तो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, और करंट स्कैन। तो ये चार स्कैन्स आपने फीटस में बोलने हैं, डेटिंग, जी मैडम। नॉर्मली, ग्रोथ एंड करंट। जी मैडम। ये जरूर बोलिए। और अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो नॉर्मली के साथ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर भी बोल दीजिए। जैसे आपके अभी केस में है ना, तो बोल जी दीजिए जी। ना कि मैं यूट्राइन आर्टरी भी देखना चाहूंगी अगर अवेलेबल होगा। तो वो इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, क्योंकि ये तो आप मुझे केस अपना सुना रही है ना, हो सकता है एग्जामिनर के पास चीजें पड़ी हैं। तो जब भी वो जी लीगो का मैडम। केस होगा तो जी 20 वीक्स मैडम। 24 वीक्स के ऊपर यूट्राइन आर्टरी जरूर मांग लीजिए।
जैसे आप पीएच प्रोफाइल को जस्टिफाई कर रही हैं, सीआरपी को जस्टिफाई कर रही हैं, तो आप फिर इस तरह से यूट्राइन आर्टरी को भी जस्टिफाई करेंगी। ठीक है, कोई प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी को रूल आउट करने के लिए आपको ये स्कैन्स चाहिए। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी आप इस स्टेज पे, जब आपको लीगोस नजर आ गया करंट मांगने के बाद, आप ये भी पूछ सकती हैं कि आई वांट टू सी द अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फॉर प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। ठीक है। ठीक हो गया मैडम, ठीक हो गया। चलो जी, आगे चलिए। जी मैडम। अब मैनेज, हाउ विल यू मैडम, मैनेज दिस पेशेंट? यस मैडम। as as my patient has severe anemia. He's a case of severe anemia. First, I will counsel my patient as she is having a severe anemia, and मैम देन मतलब मुझे ये समझ, आई विल एडमिट माय पेशेंट, आई विल एडमिट हर as she is near to term, and near to term, and she I will explain complication associated with her current condition, and as she is a case of severe anemia and she can land it up into preterm labor, and so I will first optimize her HP, and by transfusion of as she has already been transfused with two packed cell, and I will transfuse one more packed cell one more packed cell, and then I will do her CTG twice PT, and I will या ट्वाइस बोली या बीडी बोली, एक लफ्ज बोली? ओके, ओके मैडम। और सेकेंडली मैडम, इसमें मैंने एक ये भी करना है कि ये मेरी बात सुने, इसमें ना सीटीजी ट्वाइस नहीं होगी, ये जी डेली जी, सीटीजी होती है। ट्वाइस सीटीजी तो हम कभी भी नहीं करते। ओके, डेली CTG। हाँ, फीटल हार्ट्स आप ऑस्कल्टेट कर लें बीडी में, बट अगर आप सीटीजी बोलेंगी तो वो डेली सीटीजी बस होती है। ठीक है, जो आपके वार्ड में ओके हो रहा होता है वो सुबह शाम फीटल हार्ट डॉपलर से देखे जा रहे होते हैं, वो सीटीजी नहीं हो रही होती बकायदा। और सीटीजी मैडम। कहीं पे भी आपकी बीडी नहीं लिखी हुई। अच्छा, हमारी वार्ड में ना CTG हम लोग ना सुबह शाम करते हैं प्रॉपर CTG मशीन के साथ ना, वो मॉर्निंग की सिर्फ भी आप और ना इवनिंग की फीटल भी। हार्ट देखते हैं, वो पूरी 20 मिनट्स की सीटीजी नहीं निकालते। नहीं लेते बिल्कुल, 20 मिनट्स का ट्रेस नहीं होता था मैडम, ये हाँ बात तो हाँ, ठीक है। वो उसको आप बिल्कुल फीटल हार्ट चेक करना कहते हैं। क्योंकि आपके पास सीटीजी मशीन है, तो आप मरीजों को उठा के, वो हैंड हेल्ड डॉपलर नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल फीटोस्कोप से नहीं सुनते, आपके पास एक चीज अवेलेबल है तो आप उससे देख लेते हैं। बट जो बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर है। सीटीजी होती है, वो 20 मिनट्स वाली जो होती है, वो एक ही दफा होती है ऐसे पेशेंट की, हाई रिस्क की। ठीक है, तो वो आप जी उसमें मैडम। दे दे, आई विल ऑस्कल्टेट हर फीटल हार्ट्स रेगुलर बाय हैंड हेल्ड डॉपलर्स और फीटोस्कोप। ठीक है, बट सीटीजी डेली एक ही दफा होगी, उसको ट्वाइस जी नहीं मैडम। करते। वो तो आप वैसे उसके फीटल, क्योंकि सीटीजी मशीन पड़ी हुई होती है, तो कतार में सारे मरीज उठा के ले जाते हैं सीटीजी मशीन के पास, एक एक को लिटाई जाते हैं, उनके फीटल हार्ट देखे जाते हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। हाँ, तो ये फीटल हार्ट चेक किए जा रहे होते हैं, इट इज नॉट सीटीजी। सीटीजी आपकी एक ही दफा डेली आप कराना चाह रही हैं, जिस जो हाई रिस्क पेशेंट है, तो डेली सीटीजी करा लें बस। जैसे इसका लाइकर 5 है, आइडियली तो इसकी सिर्फ फीटल मूवमेंट्स पे नजर रखनी होती है, कि अगर मदर कह रही है फीटल मूवमेंट्स फील हो रही हैं तो इट्स ओके। ठीक है, और अगर उसको मैडम। फीटल मूवमेंट्स भी फील नहीं हो रही, तो बहुत आप उसको विजिलेंट होना चाहते हैं, तो डेली सीटीजी कर लें, बट ट्वाइस सीटीजी ना बोलें। जी मैडम। यस मैडम, अब तो इसमें नेक्स्ट। आपने फीटल सर्विलेंस में फीटल मूवमेंट मॉनिटरिंग by fetal kick count charts and asking patient about the fetal movements, and auscultating fetal hearts regularly twice or thrice in a day। twice कर लें आप, ठीक है, which can be held by a hand held doppler or डॉक्टर। fetoscope। and जी मैडम। for surveillance I also do the daily CTG। ठीक है। जी मैडम।
जी मैडम। क्योंकि डेली सीटीजी भी आपका, जब अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर्स में कोई इश्यूज आ रहे हैं तब आपकी सीटीजी चलना शुरू होती हैं, ठीक है। लेकिन चलें, आप जी मैडम। AF5 पे है, बहुत कम है, यू वांट टू बी वेरी विजिलेंट, तो आप, और एडमिट भी किया हुआ, तो सीटीजी की अवेलेबिलिटी भी है, तो आई विल डू डेली सीटीजी, ठीक है। क्योंकि सीटीजी का जी पेपर मैडम। बहुत एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट आती है, बड़ी सोच समझ के आपने एक इन्वेस्टिगेशन बोलनी है। बीडी सीटीजी में तो आप 1000 2000 का पेपर ही लगा देंगी, ठीक है। ठीक है तो मैडम। अल्फाज, वो वर्ड फर्क है और मकसद भी डिफरेंट हुआ हुआ है। तो सीटीजी करनी है तो वो सिर्फ डेली होगी जी। आगे। After with two blood arrangements, with two more blood arrangement after anesthesia fitness and pre-evaluation, I will after optimization of hemoglobin levels, if everything remains normal, then I will do her. I will prepare my patient for elective lower segment cesarean on elective list and. On elective list, and afterwards I will counsel my patient for the breastfeeding, and I will give her a long acting reversible contraception, counsel her for like copper IUCD, and also counsel my patient for the follow up postnatally. And I will keep the pediatrician on floor during my elective lower segment cesarean. I will hand over the baby immediately after delivery to the pediatrician and evaluate the baby. बस मैडम, मुझे इस मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं अच्छा आ नहीं, रही, इतना इसमें ही नहीं इतना जानता। नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपका जी जी। पेशेंट अब 37 वीक्स पे है, तो आपकी पिछली कहानी तो सारी खत्म होगी, ठीक है। जी मैडम। कहानी ही जी सारी जी। खत्म होगी, क्योंकि अब आपने शुरू ही इलेक्टिव सिजेरियन से करना है, तो आपका वाइवा सारा इंट्रापार्टम केयर और पोस्टपार्टम केयर और कॉन्ट्रासेप्शन पे, तीन चीजों पे आपका वाइवा होना है, ठीक है। या अगर एग्जामिनर आपको पीछे कहानी में कहीं ले जाना चाहता है तो वो ले जाएगा। तो जी आपने मैडम। उसको बिल्टअप ऑफ, आपने प्रॉपरली बताना है बिल्टअप ऑफ आरबीसीज। आई विल डू आरबीसीज ऑन alternate days. I will check her hemoglobin level after 48 hours or 24 hours. Then I will, if my target at hemoglobin is 10.5, ठीक है। Although ओके। SOGP says 11, but at 10 I can perform elective cesarean section at 38 weeks. I will keep the anesthesia evaluation. I will arrange the two bloods for this patient, and I will take the anesthesia fitness from the anesthesia, and I will take the neonatologist on board. I will perform the cesarean section, following the WHO surgical safety checklist. I will do the active management of third stage of labor. If patient allowed me in preoperatively discussion of post-placental IUCD, I will place that if feasible. If patient does refuse for post-placental IUCD, I will not place. Active management of third stage of labor will be done. If there is any requirement of blood transfusion, I will give her blood transfusion. Baby is handed over to the neonatologist for early evaluation and for further evaluation of the anemia. Then I will take the in post-op period, I will implement the enhanced recovery program and do the VTE risk assessment and manage accordingly. If my patient is stable, I will discharge on third or fourth post-operative day. After she passed the urine and she passed the flatus, when patient is stable, we can discharge her patient, and we follow up on 2 weeks and do her hemoglobin levels. I will prescribe her the therapeutic oral iron for 3 months, ठीक है। या आप प्रोफाइलेक्टिक डोज कर दें इसमें, क्योंकि आप एचबी तो बिल्ड कर चुकी हुई हैं, तो अब आप इसको प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ आयरन फॉर 3 मंथ्स। एंड आई विल काउंसल हर फॉर द डाइटरी एडवाइस बाय इन्वॉल्विंग द डाइटिशियन फॉर आयरन रिच डाइट्स लाइक डेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट,
fish and meat. And I will counsel the patient regarding pre-pregnancy counseling and optimization of her hemoglobin prior to pregnancy. I will counsel her regarding the long-acting reversible contraception in the form of implants and copper IUCD 4 weeks after the cesarean section. समझ आ गई बातें? जी मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत हाँ, अच्छी समझ आ तो गई। इसको क्योंकि आपके पास टाइम, अब आपका पास वो मैनेजमेंट का स्पैन, क्योंकि अगर वो ये 28 वीक्स पे होती 30, तो आपके पास एक बड़ी लंबी मैनेजमेंट थी। लेकिन 37 वीक्स पे आईवी पेशेंट जो है वो, उसका तो मैनेजमेंट ही या सर्जरी के पॉइंट्स होंगे, सर्जरी की उसकी होंगी, बच्चे को देखना होगा, कॉन्ट्रासेप्शन को, ब्रेस्ट फीडिंग। यस, हाँ, आई विल इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, ये बीच में जुमला आपने बोलना है कि डिलीवरी जब आपने एनहांस रिकवरी के वैसे पॉइंट्स में ब्रेस्ट फीडिंग भी आता है, लेकिन आप उसमें अलग से भी बोलें कि आई विल इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग एंड एनकरेज फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, वो एनहांस रिकवरी में बेसिकली सारे पॉइंट्स ही आ जाते हैं: अर्ली मोबिलाइजेशन, अर्ली ड्रिंकिंग, अर्ली ओरल फ्री, अर्ली मोबिलाइजेशन, 12 आवर्स फॉलीज, और उसके बाद आपका पेन मैनेजमेंट उसमें आ जाती है, फ्लूइड मैनेजमेंट आ जाती है। ठीक है, तो जब आप एनहांस रिकवरी प्रोग्राम ऑफ सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, तो वो 13 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने भेजे हुए हैं, वो आप लोग एक दफा पढ़ भी लें, हो सकता है वो पूछ लें कि तेरा कौन से पॉइंट्स हैं एनहांस रिकवरी के, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जी मैडम, थैंक यू सो मच इसको मैम। प्रेजेंट मैनेजमेंट की भी थोड़ी डेफिशिएंसी थी, उसको हम कब जी मैडम। कंप्लीट कर लें, बाकी इंशाल्लाह फिर आप मुझे पहले केस बता दिया करें कि जी नेक्स्ट मैंने आपको ये केस देना है, तो फिर जी हम मैडम, उस पर ठीक हो बात गया। कर लेंगे। या जी इस मैडम, सेशन को हम इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं कि हम पहले आपकी पूरी केस हिस्ट्री ले लें, लेकिन वो फिर टाइम लग जाता है। केस प्रेजेंटेशन से अगर शुरू करें तो हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टाइमर के साथ करेंगे, तो फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट भी देख लेंगे। आप कोई सा भी जी केस देख लें, नेक्स्ट आप कोई डायबिटीज का केस देख लें, अगर नहीं तो जी फिर मैडम। मैं खुद जी मैडम, आपको केस दे दूंगी कि ये केस है, अब आप इसको हिस्ट्री लें बस पहले। ठीक हो गया मैडम जी, लेकिन फिर ठीक हो दैट गया मैडम। रिक्वायर्स एटलीस्ट 1.5 आवर। जी मैडम, ठीक जैसे है, आप कहेंगी मैडम वैसे कर लूंगी। अभी भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं वो बहुत सी नेक्स्ट चीजें वीक से इंशाल्लाह उसमें। मैंने ना, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें